All right, so we start. So we were talking about reinforcement learning, and I think we were quite far into this. Right, so this is what we were doing. We were doing sample based policy evaluation. Okay, so we were talking about, we had done I think temporal difference thing. We were talking about moving average. So right, so we were talking about moving averages, and we talked about this from a different set of slides of deeplearning.ai CS 230, right, prepared by Undoing. Now, so what is this equation telling me? एक बार फटाफट से बता दो. So नहीं, so x n बार से हम एवरेज को डिनोट कर रहे हैं. So bar at, I mean average at nth step is given as some components times previous average plus current average, right? Now this whole thing will sum to, so 1 minus alpha plus alpha will give you 1. Okay, so some percentage to this, some percentage to this. If I put, so what is this guy? If I put, let's say, alpha equal to 0, if I put alpha equal to 0, then that's the normal average, right? Total values divided by the number of samples, which is n in this case. Okay, so so previous one times something, current one times something, and then this whole thing sums to 1. Decreased learning rate can give converging averages. So decreasing learning rate, in this case alpha, they are saying alpha is the learning rate, forgets about, so what do you mean by forget about the past? Not this one. So we are concerned with this equation now. Okay, इसके बारे में अपन ने बात नहीं की थी. Okay, so what were we doing here? All these values are given to us. Gamma is 1, that means we are not discounting, and we are not discounting for the sake of calculations. आसान रहता है उससे. Alpha equal to 1 by 2. These are the observed transitions that we have. So this is S, A, S prime, R. S, A, S prime, R. So how are we computing these values now? This is given to us. We need to compute values, right? We need to compute values. ये रही यहाँ पे. We need to compute values according to a pi in state S. What are we doing here? देखो ये क्या चीज है? हाँ. What is this? देखो पिछली वाली स्लाइड्स पे जाओ. Want me to repeat some of those things, थोड़ी सी रिफ्रेश हो जाए, और इट्स ओके. देखो अपन बात कर रहे थे यहां पे, हम यहां पे ये सब बातें कर रहे थे, राइट? What was there in this?
टेम्पोरल डिफरेंस लर्निंग वॉट एवर इट इज, देखो अपने को सैंपल में अपन क्यों इंटरेस्टेड है, दैट इज द होल क्वेश्चन। सैंपल में अपन क्यों इंटरेस्टेड है? मॉडल और मॉडल फ्री में अंतर क्या है? मॉडल एंड मॉडल फ्री का इन्होंने जो एग्जांपल दिया है ना, वो क्लास की हाइट वाला, दैट इज वेरी रिलेवेंट, उधर ध्यान में रहना चाहिए। सो एक तो क्या है अपना मॉडल मींस, मॉडल बेस्ड मींस, देखो बेलमैन इक्वेशंस दे आर देयर टू स्टे, वो कहीं नहीं जा रही है। सो व्हाट इज रीइंफोर्समेंट लर्निंग इन अ वे, इफ समबडी गिव्स यू, सो well that's not reinforcement learning, but in the end you are solving MDPs. So if you are given all the parameters that are required to solve MDP, can you solve them? तो वो अपन कर सकते हैं। Now what happens in reinforcement learning? What is the difference between MDP versus reinforcement learning? Some information is missing, right? And that some information is usually T and R. Okay? So आपके पास ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज नहीं है, एंड आपके पास ये नहीं है कि कौन सी पर्टिकुलर स्टेट में ट्रांजिशन होने से कितना रिवॉर्ड मिलेगा। ओके, नाउ इफ दीज टू थिंग्स आर नॉट गिवन, कैन आई सॉल्व एमडीपीज? आई कैन नॉट। सो मेरे पास अब दो तरीके हैं करने के, दूसरा तो अपने पास बाद में आया। पहला क्या तरीका था करने का? फिगर आउट टी एंड आर। फिगरिंग आउट टी एंड आर मीन्स व्हाट? मॉडल बेस्ड, राइट? बिकॉज आप क्या करना चाह रहे हो, whatever the world is out there, आप उसका एक मॉडल यहां पे रख के बेलमैन इक्वेशंस को सॉल्व करना चाह रहे हो। सो देयर इज अ वर्ल्ड आउट देयर, आपने कहा कि दिस इज हाउ इट वर्क्स एज लॉन्ग एज आर इज कंसर्न, दिस इज हाउ इट वर्क्स एज लॉन्ग एज टी इज कंसर्न। ठीक है, तो आपने मॉडल बनाया एनवायरमेंट का, उससे आपने डिड्यूस किया आर एंड टी। फाइन। नाउ अब एक दूसरी अप्रोच है, देखो इसमें बहुत सारे नाम आए ना, एक्टिव, पैसिव, देन टेम्पोरल डिफरेंस एंड बहुत सारे थे, राइट? वर्सेस सैंपल। अब सैंपल में क्या करते हैं अपन? देखो एक बार बताओ, अगर एक तो आप दैट सेम ग्रिड वर्ल्ड एग्जांपल, राइट? आई एम स्टैंडिंग हियर, इफ आई टेक अ नॉर्थ with probability 0.8 I actually go to north, with probability 0.1 I go either to right or left, and with probability I go, with probability 0 I go back. ठीक है, अब या तो, and I don't know let's say these probabilities, so right now let's say reward is 0, reward के बारे में अपन बात नहीं कर रहे, but probabilities I don't know. How will I figure out these probabilities? एक तो ये कि अपन ने वो बहुत सारे एपिसोड्स किए, तो आपने 100 बार चल के देखा, मैंने 100 बार इस स्टेट से चल के देखा, राइट? तो अगर 100 बार चल के देखा और आंसर इज सपोज टू बी दिस, तो रफली क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है? 80 10 10 विल बी दी परफेक्ट थिंग, राइट? बट ये भी हो सकता है कि किसी के तो आए कि आगे जाने की प्रोबेबिलिटी इज 0.75, किसी के आए आगे जाने की प्रोबेबिलिटी इज 0.85, सबकी अलग। बट if all of us do it infinitely many times, all of us will converge to that same number 0.8, 0.1, 0.10, right? तो ये तो अपना हो गया मॉडल बनाना। बट why don't we want to make models? प्रॉब्लम क्या है उसमें? देखो किसी भी मॉडल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक तो ये है कि it is never going to be close to the environment that you are trying to model. It will be very very far from that. Okay? What is second? आपको मॉडल बनाने के लिए जितना एक तो पहला तो आपका मॉडल एक्यूरेट होने वाला ही नहीं है, दूसरी बार आप जितने एपिसोड्स उसमें करोगे, राइट, दे आर रियली एक्सपेंसिव। कैसे? मेरे को कंप्यूट करनी है प्रोबेबिलिटी फ्रॉम दिस स्टेट, मेरे को इस स्टेट से इनफाइनाइट स्टेप्स लेने पड़ेंगे, लेट्स से इनफाइनाइट नहीं, बहुत सारे। फिर अब मेरे को इस स्टेट के बारे में तो आई नो, नाउ व्हाट अबाउट दिस स्टेट,
उस स्टेट में कंप्यूट कर लेने से डू आई नो थिंग्स अबाउट दिस स्टेट? नो, आई नीड टू रिपीट थिंग्स, राइट? दैट्स अ वेरी लेंथी प्रोसेस. तो आप जिस भी आर एंड टी को डिड्यूस करोगे, दैट इज गोइंग टू बी रियली अ वेरी क्रूड अप्रोक्सीमेशन ऑफ द रियल वर्ल्ड. नाउ सैंपलिंग बेस में अपन क्या कर रहे हैं? वी आर डूइंग द सेम थिंग, राइट? बट इसके फायदे क्या है? Why do we care about this? Why do we care about this quantity? भाई बोरिंग लगे, रिपीटिशन लगे, मेरे को बोल देना, विल जस्ट गो टू नेक्स्ट. Why do we care about this quantity? देखो, I mean, all of you know the answer, just that कि you don't know what to say here. अपने बेलमैन इक्वेशंस में ये टर्म आती है, राइट? सो ये टर्म बेलमैन इक्वेशंस में आती है. इससे पहले क्या टर्म आती है? दिस इज फॉर एवरी ब्रांच, दिस इज फॉर दिस गाय, राइट? नाउ अब ऐसी जितनी ब्रांचेस हैं उस पे अपन समेशन कर देते हैं टी. भाई यहां पे अगर बहुत सारी ऐसे हैं, विल डू सम ओवर दिस टी, वो चीज यहां पे बाहर आ जाएगी, राइट? सो दिस इज व्हाट इट इज. अब हम ये क्या कह रहे हैं कि आप ये चीज करके देख लो. नाउ दिस वाज फॉर पॉलिसी इवेल्युएशन काइंड ऑफ थिंग, बट जहां पे भी अपन सैंपल ले रहे हैं, वी आर सेइंग कि यू विल गेट दिस थिंग इन द एंड. यू आर नॉट गोइंग टू गेट वन वैल्यू, यू आर गोइंग टू गेट जस्ट दिस वैल्यू. ओके, लेट अस कंटिन्यू नाउ. सो अपने एक मशीन लर्निंग में भी बताओ, हाउ डू वी स्टार्ट दिस सिस्टम? रैंडमली इनिशियलाइज करते हो. एंड आर दे एनीवेयर क्लोज टू द फिनिश्ड लर्न वेट्स? नो. ओके, आइडियली दे वर नॉट सपोज टू बी, राइट? सो सेम थिंग यहां पे, जब आपने किसी चीज से स्टार्ट किया, कोई सैंपल आया आपके पास, राइट? दैट सैंपल इज नॉट सपोज टू बी दी करेक्ट सैंपल, बट जितने ज्यादा सैंपल लेते जाओगे उतना ज्यादा यू विल बी क्लोजर टू द रियलिटी. ओके, सो व्हाट डज इट मीन? डिक्रीजिंग लर्निंग रेट कैन गिव कन्वर्जेंस एवरेजेस. अच्छा एक बात बताओ, इस इक्वेशन में अपन ने वो जो एंड्रूइंग वाले लेक्चर से वो जो 3 कर्व्स डिसाइड किए थे, राइट? इफ माई अल्फा इज लो, व्हाट हैपेंस? If alpha is low, नहीं zigzag को छोड़ो, मेरे को इसमें बताओ in terms of dependence on xn minus 1 and xn. So previous वाले पे डिपेंडेंसी ज्यादा है. अब सपोज करो मैं शुरुआत ही कर रहा हूं अभी, राइट? आई एम जस्ट बूटिंग अप माई सिस्टम. कीपिंग अल्फा लो इज अ गुड आइडिया. व्हाई नॉट? दैट्स अ गुड आंसर, बट व्हाई नॉट? बिकॉज प्रीवियस खुद ही रिलायबल नहीं है, राइट? एंड दीज आर द एक्चुअल सैंपल्स आई एम गेटिंग. सो इनिशियली व्हाट शुड हैपन? अल्फा शुड बी हायर, बिकॉज मेरे को पुराने वाले पे कॉन्फिडेंस नहीं है. दीज आर द एक्चुअल सैंपल्स दैट आर कमिंग फ्रॉम द मॉडल, सो कम से कम I can rely on these guys. So initially you can have high alpha. Now it says decreasing learning rate can give convergence averages. Now over the period I should decrease. Why? Because जितना ज्यादा आप सैंपल करते जाओगे, your xn will be more robust, right? So now you don't need to give too much weightage to this guy because your average has accumulated sufficient samples to be robust enough कि now I am capturing the right thing. Okay? All right. So ये -1 कैसे आया एंड ये 3 कैसे आया? अल्फा इज 1/2, गामा इज 1. Okay, how do we compute this? एक बार करो. This is my episode here. So in state B, I go east, I go to C,
and I get reward -2. So -1 कैसे आया? ये रही आपके पास इक्वेशन, आसान है, देखो करके तो देखो एक बार। देखो व्हाट इज v पाई s राइट नाउ? क्या कंप्यूट कर रहे हो? व्हेन आई एम सेइंग ये वैल्यू निकालो, कंप्यूट क्या कर रहे हो? 2 मिनट सोचो, तुरंत आंसर मत दो। व्हेन आई एम सेइंग आई वांट दिस वैल्यू, तो इस इक्वेशन में मैं कोरस्पॉन्डिंगली क्या चेंजेस करूंगा? व्हाट इज इट दैट आई एम कंप्यूटिंग? v पाई s की जगह क्या? मैं वैल्यू कहां पे कंप्यूट कर रहा हूं? क्या चीज? राइट, मैं कंप्यूट क्या कर रहा हूं ये तो बताओ। इस स्टेट की वैल्यू यहां पे, सो व्हाट आई एम कंप्यूटिंग इज v पाई b, okay, to be precise v pi b. Now v pi b depends on the previous value of v pi b. What is previous value of v pi b? 0. This term goes 0. Now what is this whole thing? -2. Now alpha is 1/2. 1/2 times 0 gives me 0. 1/2 times -2 gives me -1. Now give me 3. Give me 3 now, फटाफट से। So when I am computing these 3, what exactly am I computing? 4 minus 1. V pi c, right? Now V pi c, फर्स्ट टर्म -1 हो जाएगा, सेकंड टर्म 4 हो जाएगा। what is this guy? देखो यहां पे देखो, नहीं, एक सेकेंड। -2 is actually just this. हाँ, so V pi c, which is currently 0 plus 1/2 times -2 plus 8. Gamma is 1, so this remains 8 and that gives you 3. राइट, ये सारे एपिसोड्स के लिए वी कैन डू दैट। सो अभी इससे मेरे को क्या मिल रहा है? कैन आई डू इट फॉर दिस गाय एज वेल? अगर मेरे पास ट्रांजिशंस है आई कैन, अगर मेरे पास ट्रांजिशंस है आई कैन, आई कीप ऑन रिपीटिंग दिस थिंग कि इफ आई, सो एक बात बताओ, इज दिस वन ऑब्जर्वेशन सफिशिएंट और आई शुड डू मोर? B is C, should I do more of these? Why not? Because आगे जाएगा वो with probability. This is something you don't know a priori, right? देखो आपको यही तो सब नहीं पता ना कि how do things look like. So you need to take more observations. Questions here? तो observation देखे average निकालने का। ऑब्जर्वेशन देखिए,
सजेस्ट कर रहे हो या क्या कर रहे हो? पूछ रहा हूँ कि मल्टीपल आइटरेशंस करी हमने हम्म एंड में जाके हर एक मतलब एंड में जाके क्या करेंगे एवरेज आउट करेंगे या फिर दैट्स अ गुड क्वेश्चन. अगर अपन मल्टीपल एवरेज लेंगे तो इन दी एंड क्या करेंगे? एवरेजेस लेके क्या करेंगे? So if I take two such observations of this kind, तो दोनों के साथ क्या करूंगा? I'll take average or do what? How will I take average? See, if you see here, this is already doing that by weighting average चल ही रहा है ना हर एक का. This depends on previous value plus current observation. So जो average की बात कर रहे हो exponentially weighted तो already चल रहा है. Okay? Next time you do this, let's say this happens one more time. अब क्या हो जाएगा? So अब v pi b will not be 0 anymore. It will be your previous thing weighted by 1 minus alpha and this new observation weighted by alpha. Whatever comes out, sub that up यहाँ पे रख दो and keep on doing it, right? And अपने को मतलब किस चीज से है? You keep on doing this when things starts getting converged, then basically you are reaching to a saturation point. So ये अपन ने जस्ट जो कंप्यूट किया, एक बात बताओ, व्हाट आर वी कंप्यूटिंग इन द एंड? यहां पे अगर अपने पास बहुत सारे ट्रांजिशंस होंगे, व्हाट विल वी एंड अप कंप्यूटिंग? वैल्यूज, राइट? वैल्यूज ऑफ ऑल द स्टेट्स. लेट्स से कि अपन ने सब जगह बहुत अच्छे ट्रांजिशंस कर लिए, वी हैव वैल्यूज एट ऑल द प्लेसेस. नाउ व्हाट आर द डाउनसाइड्स? अभी तक अपन ने जो देखे इसके हिसाब से, इफ आई हैव ऑल द वैल्यूज, इफ आई हैव ऑल द वैल्यूज, एम आई डन? Because in the end my goal is to get policy. I need to know कि मेरे को कौन सी स्टेट में क्या एक्शन लेना है. And values don't give me that. Values ने मेरे को ये तो बता दिया कि these are the optimal values, but एक particular स्टेट में मेरे को करना क्या है मेरे को ये नहीं पता. So let's say this was the optimal thing 3. Okay? 3 corresponding होगा इन चारों में से किसी के, राइट? बट विच वन आई स्टिल डोंट नो. उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? आई विल स्टिल नीड टू डू समथिंग ऑफ दिस काइंड, राइट? कि कौन सा वाला मैक्सिमम है, गिव मी दैट आर्गुमेंट जो 3 पे मैक्सिमाइज हो रहा है, राइट? सो टीडी वैल्यू लर्निंग इज अ मॉडल फ्री वे टू डू पॉलिसी इवैल्यूएशन मिमिकिंग बेलमैन अपडेट्स विद रनिंग सैंपल एवरेजेस. सो मॉडल फ्री बिकॉज we are not trying to guess what is T and R, we are just sampling we are just sampling through observations. However, if we want to turn values into a new policy, we are still supposed to do this. Idea is to learn Q values and not values. So this is something that they say unlock the modern reinforcement learning. So makes action selection model free too. एक बार आई स्टॉप हियर. प्रॉब्लम्स क्या है अपने पास अगर ऑप्टिमल वैल्यूज आ भी गई तो? यू डोंट रियली नो कि ये वाली ऑप्टिमल वैल्यूज किस एक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग है, राइट? सो यू आर स्टिल लेफ्ट टू डू अ लॉट ऑफ वर्क. नाउ एक्टिव रीइंफोर्समेंट लर्निंग. सो full reinforcement learning. Optimal policies like value iteration, you don't know transition, you don't know the rewards, you choose actions now. Goal is to learn the optimal policy values. In this case, learner make choices. Fundamental trade-off exploitation versus exploration versus exploitation, we'll see. This is not an offline planning. So this is not an offline planning. You actually do actions in the real world and find out what happens. What does this mean? Not an offline planning. कि आपके पास स्टेट्स वगैरह सब कुछ गिवन है, आप पीछे बैठ के कंप्यूट कर रहे हो एंड देन यू आर ट्राइंग टू कंप्यूट द वैल्यूज. कुछ नहीं हो रहा है. यू आर एक्चुअली टेकिंग एक्शंस इन द वर्ल्ड. राइट? व्हाट इज दिस? पहले तो व्हाट इज दिस एंड देन व्हाट इज दिस?
So right 2-3 minutes ago we have started the modern reinforcement learning जो आज की डेट में दुनिया कर रही है. Okay, value iteration, find successive values. Start with v0 s equal to 0, which we know is right. Why do we know this is right? Why is this right? So why v0 s is 0 for all s? Right, but then which we know is right. How do we know it is right? इसका मतलब क्या था अपने v0 s equal to 0? नहीं, एक बार वापस, अपन ने काफी बार बात की है, बट 9 दिन की हॉलीडेज मेरे लिए भी ज्यादा थी और शायद आपके लिए भी. v0 s0 means when I am in state s and I am given 0 time to play. How much reward will I get? 0. Okay. When I am in state s, if I am given 1 time to play, then this may be something. But if I am given no time to play, I basically can't get anything. Okay. So given vk, calculate the depth k plus 1 values for all states. ये अपने बेलमैन इक्वेशंस है वैसी की वैसी उठा के, राइट. सो बट नॉट बेलमैन इक्वेशन, एक्चुअली यहाँ पे आपने k एंड k plus 1 के टर्म्स में रख दिया है. सो इट्स अ इटरेटिव, मे बी यू कैन पुट दिस इनसाइड अ फॉर लूप. बेलमैन इक्वेशंस यू कुडंट, है ना. बाय q वैल्यू, बट है बेलमैन इक्वेशंस, बट q वैल्यूज आर मोर यूजफुल, सो कंप्यूट देम इंस्टेड. व्हाई आर q वैल्यूज मोर यूजफुल? देखो अभी बीच में ना 2-3 महीने पहले चैट जीपीटी से रिलेटेड बहुत ही उठा भी था कि क्यू लर्निंग, राइट. सो टेल मी व्हाट आर क्यू वैल्यूज? सो बट क्यू वैल्यूज आर मोर यूजफुल, सो कंप्यूट देम इंस्टेड. क्यों? व्हाई आर क्यू वैल्यूज मोर यूजफुल? सो इफ यू स्टार्ट कंप्यूटिंग क्यू वैल्यूज से क्या आप वैल्यूज निकाल सकते हो ऑप्टिमल? यस. और क्यू वैल्यूज अगर आपके पास हो तो कैन यू गेट also the policy? Yes, right. So q values actually give you everything that you wanted. So q values are more useful, so compute them instead. Start with q0 s a0. Why is this guy 0? Same reason. Okay. Given qk, calculate the depth k plus 1 q values for all q states. Okay. Same equation है, देख लो क्या कहां पे चेंजेस है. देखो यहां पे मैक्स पहले है, यहां पे मैक्स यहां पे है. ओके. एंड इससे क्या फर्क पड़ा? आई थिंक दिस विल बी आवर लास्ट स्लाइड टुडे. 10-15 मिनट जितने ही बचे हैं, विल जस्ट टॉक अबाउट दिस. एक तरीके से नहीं, बट we are writing qk plus 1 in terms of whatever. तो ये इक्वेशन कैसे आई? क्या चीज? राइट. सो ये सब छोड़ो. Q, this is your S. You take action A. You go to what? Q state. Q of S comma A. Now I can go to any of these guys. Okay. Now यहां पे अपन क्या कर रहे थे? What are we doing here? सोच के बोलो, यहां पे अपन क्या कर रहे हैं? यहां पे सब ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटीज है. सो व्हाट आर वी डूइंग? वेटेड एवरेज ऑफ ऑल दीज वैल्यूज. भाई ये इक्वेशन क्या है? देखो एक बार ढंग से, मैक्स को हटाओ एक बार.
ये इक्वेशन क्या है मैक्स के बाद वाली, ये वाली, यहां पे वेटेड एवरेज कर रहे हो सबका अकॉर्डिंग टू देयर प्रोबेबिलिटीज, ये रही सबकी प्रोबेबिलिटीज। ओके, नाउ अब वो मैक्स क्या कर रहा है यहां पे, दिस वाज फॉर वन एक्शन, आई कैन हैव मल्टीपल एक्शंस, तो वो मैक्स क्या बोल रहा है, जिस एक्शन ने मेरे को ये वाली वैल्यू मैक्सिमम दी, उस वाली वो वाली वैल्यू मेरे को चाहिए। सो लेट्स से यहां पे मेरा आया टोटल कितना 5.4, 8.3, 9.2, 6.1. So I take which one? 9.2, right? So ये पूरी चीज में VK plus 1 will be 9.2 because यहां पे मैं मैक्स ले रहा हूं और यहां पे मैं एवरेज कर रहा हूं। ओके, इस केस में देखो क्या हो गया, जब आप ये वैल्यू निकालोगे यहां पे तो पहले एवरेज करोगे, राइट, एंड हर एक वैल्यू यहां पे क्या है, अब तो ये अपन ने बनाया था इसके लिए। नाउ लेट्स से एंड ऑल दीज गाइज वर एस प्राइम, नाउ यहां पे सब पे क्या होगा, दिस इज क्यू स्टेट, दिस इज नॉर्मल स्टेट एंड दीज आर अगेन क्यू स्टेट्स। पहले मैंने एवरेज लिया एंड देन यहां पे सब पे क्या होगा, यहां पे सब पे मैक्स होगा, दिस इज व्हाट इट इज हैपनिंग हियर। ठीक है, अब बताओ इससे फर्क क्या पड़ा, as they say this observation has unlocked the modern reinforcement learning, so this must be something really big. क्या फर्क पड़ा बताओ, प्रॉब्लम क्या थी अपने वैल्यूज के साथ में, जो अपन वैल्यूज को कंप्यूट कर रहे थे। सो एक तो एक बात बताओ, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद मैक्स वर्सेस एवरेज। इफ आई गिव यू एन एरे ऑफ साइज 1 million, okay, and ask you give me the max, what will you do? Do I have any other choice? I will have to go through all those 1 million elements in my array and then finally give you that this is my max. Now if I ask you, if I give you a super big array of 100 trillion numbers and I ask you give me the average, you have memory sufficient enough to incorporate maybe 1 trillion numbers, क्या करोगे, रैंडम सैंपल ले लो एंड देन उसका एवरेज ले लो, विल दैट बी एन ओके सॉल्यूशन, राइट? दिस इज द बेसिक डिफरेंस। यहां पे जब आप वैल्यूज के लिए मैक्स ले रहे थे, यू डोंट नो हाउ टू डू दिस, बिकॉज मैक्स लेने का तो मेरे पास एक ही तरीका है, विच इज गिव मी ऑल दीज वैल्यूज, I will go through all the values and then decide this is max. I don't know any other way of computing max. But averages की अगर आप बात करते हो यहां पे, now अब एक बात बताओ, max के अंदर जाने से फायदा क्या हुआ? What is this guy? What is this whole thing? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है ये सैंपल है, तो ये तो आपको करंट ऑब्जर्वेशन से आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे वहां पे क्या है, वेटेड एवरेज। कैन यू डू दिस थ्रू सैंपलिंग? This you can do through sampling. This also you were doing through sampling, but max यहाँ पे बाहर है, that is creating problems for us because मेरे को values तो आ रही हैं, but I am not getting the actions, right? किस state के corresponding, किस action के corresponding वो particular max है। What are the advantages here? मेरे को average लेना है, which I know I can do through sampling। तो अब ये वाली चीज, अगर मेरे को सैंपल ही लेने हैं, विच वन डू आई प्रिफर? राइट, बिकॉज एक तो क्यू वैल्यूज के साथ फायदा क्या है, आई गेट बोथ वैल्यूज एज वेल एज
actions corresponding to the optimal whatever I was trying to do, right? In this case I get just values and I still need to do a lot of compute to compute policy. Okay, इस केस में nothing of that sort, but we'll see कि और भी ज्यादा फायदे हैं इसके. Any questions here? So now we are switching from computing v values to computing q values, and इसके फिर से अपने खुद के नाम है. Important thing to note here is अगर max आपके शुरुआत में ही बैठा है, right? So you are supposed to compute max of all these guys. You have no choice but to have all those values and then take max. Average के साथ अच्छा क्या है? I don't need to have all the values. A random sample will be good enough. So now we come to Q learning, and this Q learning of late has been very, very famous. So Q learning sample based Q value iteration, ये इक्वेशन अपन पहले देख चुके हैं. Learn QSA values as you go, receive a sample SA S prime R जो हम पहले कर रहे थे. Consider your old estimate which is QSA, consider new sample, सब कुछ सेम है जो अपन कर रहे थे. This is my new sample now, and जहां पे पहले V था we are just replacing it by Q of S, I. Okay? I don't want to go too fast here, so अगर questions है, in fact this is the last slide, so I think we can finish with these guys now. Alright, first I'm going to execute it by hand. So here's that clip, everything on the bottom is bad, and the exit on the right is good. So watch as I go. As I go, nothing really happens until I receive a non-zero reward. And as I receive the exit from here, in this case it was plus 10, I mean, a non-zero reward. So everything is 0 to begin with. Okay, that's what we say. Q of S comma A is 0 for everything, right? So Q 0 S comma A is 0 for everyone. Next, so यहाँ से यहाँ तक आते गए, everything is still 0 because Q values were 0. Now what happens? As I receive the exit from here, as you receive the exit from here, something should change. Tell me which one will change? How do values propagate? सबसे पहले आपके so bottom up है ना, तो सबसे पहले आपके टर्मिनल स्टेट्स की वैल्यूज आपको पता चलेंगी. इज दिस अ टर्मिनल स्टेट? यस, वैल्यू पता चल गई. तो अब कहां पे प्रोपगेट होगी? नेक्स्ट लेवल पे. सो कहां पे वैल्यूज चेंज होनी चाहिए? this case it was plus 10, and because my learning rate is set to 0.5, which is not a good learning rate, it's way too high, but it's good for the demo. If I keep doing this, we'll see. वैल्यूज अभी चेंज नहीं हुई है. कब चेंज होंगी ये बताओ? When I come here, go to this and take exit, right? That as I leave here, I will learn something about what east does from this state. And you can see I update east. The other actions. ये पॉइंट 2.5 क्यों है? ये 2.5 क्यों बता सकते हो अब तो? ये क्या वैल्यूज ले रहे हैं सब में? डिस्काउंट इज 1, अल्फा इज हाफ. सो पहले वैल्यूज थी 0, अभी करंट आपको मिला सैंपल से 5. So 1/2 times 0 plus 1/2 times 5, that gives you 2.5. Haven't been updated because I didn't do them. Right? If I go here, let's just do this for a while. Let's build up some information about going east. So it looks like going east is pretty good. अच्छा, ये वैल्यूज क्यों चेंज हो रही हैं? बट ये 5 से फिर देखो 5 से ये हो गई 7.5. क्यों? If I go here, let's just do 5 से 7.5, then 7.5 से 8.75. Why so?
रिमेंबर ओरिजिनल वैल्यू कैसे निकालोगे? हाफ टाइम्स प्रीवियस एवरेज विच वाज 0 प्लस हाफ टाइम्स माय करंट सैंपल। तो उस समय सैंपल क्या रहा होगा जब आपने हाफ किया होगा? 10। 10 का हाफ होके 5 आया ना, राइट? सो अब नेक्स्ट टाइम वहां से जाओगे तो क्या होगा? योर प्रीवियस वन इज 5 प्लस मतलब हाफ हाफ में करके बताओ। अब हमारा माई करंट वैल्यू इज 5, 1/2 टाइम्स 5 गिव्स मी 2.5 प्लस 1/2 टाइम्स 10 that gives me 5. 5 plus 2.5 that gives me 7.5. Okay? And we keep on doing this. Do this for a while. Let's build up some information about going east. So it looks like going east is pretty good. What happens if I jump off a cliff? अच्छा एक चीज जो अपन इसमें रह गए। सो वापिस ये देखो यहाँ पे वैल्यूज कैसे प्रोपिगेट हो रही हैं। अब ये 2.5 देन दिस वन, व्हाई दिस वन बिकेम नॉन जीरो? यहाँ पे देखो 2.5 है, 7.5 है। नाउ दिस गाय विल बिकम नॉन जीरो। व्हाई नॉन जीरो? व्हाई नॉन जीरो बट दिस इज स्टिल जीरो? बॉटम अप, राइट? Just for a while, let's build up some information about going east. So it looks like going east is pretty good. What happens if I jump off a cliff? I learned that the fire pit is bad, and if I do it again, I learned that jumping off the cliff is bad. But I can do this all day long, and I will never learn that the start state is bad. Why? I guess the important thing here is when I move from here east, I land in a state which has some good options and some bad options. But when I do my Q update, I maximize over them. And so I only incorporate that 9.8, not the negative 89. So you can see that even though I am jumping off the cliff every time, in fact, the east Q values are going up because they look at the optimal thing. Okay? What is happening? See, this is the magic that is happening in today's reinforcement learning world. What is happening here? He said, I am jumping off the cliff every time, but आपने फिर भी देखा होगा कि these values are increasing. Why so? सोचो. Okay? And we are done for today. Attendance.